Hello everyone, Namaskar. In today's video, I'll talk to you about each and every one of the 23 services that you're supposed to fill in Civil Services Exam 2026. And इस साल ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि पहले तक क्या रहता था कि multiple re-attempts you could give in order to improve your ranking and standing, but now that has been limited. Now you can only give one improvement attempt if you've been selected in any of the Group A services. IAS and IFS तो छोड़ ही दो. If you're there, you're not even getting another attempt. So, knowing about the service is very, very important. And therefore we'll talk about that in detail. And ये अब ऐसे मेरे मन की बात नहीं है. These are things that we have understood from people who are in service, people who were my friends, who were preparing with me while I was preparing, and at the same time our students in the last couple of years कि भी उनको क्या समझ आ रहा है while they are in service. क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है जो बाहर से लगता है कि अच्छा ये तो बहुत बढ़िया है, but practically that is not how it works. तो practical insights we'll talk about in today's video. Now इसका कारण जैसे कि आप जानते ही हैं that the problem or why this was brought about was because people who were in training were appearing for another attempts and they were not really in training. So a lot of the academies were trying to curb this tendency of people to come to IRS, come to forest service, come to any of the services and then keep appearing again and again. तो अब वो एक साल का अटेम्प्ट के कारण वो चीज हुई है क्योंकि इससे पहले क्या हो रहा था, पीपल हैड स्टार्टेड गोइंग टू द कोर्ट्स. लाइक फॉर एग्जांपल आई थिंक गौरव लोढ़ा वर्सेस डीओपीटी. नाउ डीओपीटी कौन है यहाँ पे, क्या है? यूपीएससी selects candidates and the Department of Personnel and Training, which is the HR department of the government, allocates the service. तो डीओपीटी को उठा के लोग कैट में ले गए थे. कैट क्या है? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल. एंड कैट में अब केसेस चल रहे थे कि भी अच्छा फॉरेस्ट सर्विसेज के ऑफिसर्स थे, गौरव लोढ़ा एंड अदर्स. एंड इस केस में शशांक सर, co-founder upscprep.com, he was also there representing the candidates. तो उस केस में क्या हुआ था कि भाई द कैट हैड देन टोल्ड डीओपीटी कि नहीं, इनको अटेम्प्ट देने दो. तो नाउ रूल्स देमसेल्व्स हैव बीन चेंज्ड सो दैट पीपल कैन नॉट इवन अप्रोच द कोर्ट्स. तो ऐसे में आई गिव यू अ कपल ऑफ प्रिंसिपल्स कि भाई सर्विसेज के बारे में जब हम बात करते हैं तो किस तरीके से हमें उनके बारे में सोचना है. एंड दिस डॉक्यूमेंट दैट वी प्रिपेयर्ड विल आल्सो बी अवेलेबल ऑन आवर टेलीग्राम चैनल. तो टेलीग्राम चैनल जो अपना है, for those of you that do not know, it's at UPSC Prep IAS. This document will be available over there. Now, each and every services के बारे में हम बात करेंगे. A brief I'll give you about the service, and this document will also deep dive into each service कि भी potential क्या है, अच्छी चीजें क्या है, ना नहीं है, what all is relevant over there. But before that, we need to talk about a couple of principles. जब भी आप सर्विस सेलेक्ट करते हो, भरते हो, इसमें सबसे पहली एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको रखनी है दैट यू वांट टू सेलेक्ट अ सर्विस व्हिच हैज अ हायर पोटेंशियल. क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि नहीं नहीं आईएफएस मेरे को देश के बाहर नहीं जाना. आप आईआरएस में होके भी देश के बाहर भेजे जा सकते हो. एंड लाइक इट्स नॉट लाइक दैट कि भाई मतलब अगर मैं फॉरेन सर्विस में रहूंगा तो मैं सिर्फ देश के बाहर नहीं. वन थर्ड ऑफ द फॉरेन सर्विस यू विल ऑल्सो स्पेंड इन इंडिया. आई वॉन्ट टू सेलेक्ट अ सर्विस ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल. क्योंकि आज लेट्स से यू आर थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स व्हाइल यू आर 22-25 year old. At 35 years of age, your priorities in life will change, and at 45 they will change even further. मतलब फॉर कॉन्टेक्स्ट थिंक ऑफ इट एज कि 15 साल की उम्र पे जो आपको चीजें चाहिए थी, मतलब आई एम श्योर दे हैव चेंज्ड नाउ दैट यू आर 25 year old. सो कीपिंग ऑल ऑफ दोस थिंग्स इन माइंड, select a service based on potential of the service. क्योंकि this is the only criteria which determines कि आपका quality of life down the line कैसा होगा. आपकी सर्विस के पास कोई पोर्टफोलियो ही नहीं है ढंग का. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द केस विच हैपेंस विद लेट्स से इंडियन ट्रेड सर्विस. कि भाई इंडियन ट्रेड सर्विस में टोटल ही आपके 200 ऑफिसर्स है, लेस देन 200 ऑफिसर्स इन टोटल इन द ट्रेड सर्विस. तो नो मैटर व्हाट यू डू, दीज पीपल विल नेवर गेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स. एंड जब भी देर विल बी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स, देर विल बी समबडी एल्स हु विल बी इन चार्ज ओवर देयर. मतलब मे बी एन आईआरएस ऑफिसर, मे बी एन आईएएस ऑफिसर. सो देन उस तरीके से मुझे इसके बारे में सोचना है. अब पोटेंशियल कैसे दिखाया जाए, तो देयर इज अ प्रॉक्सी फॉर पोटेंशियल इन विच बजट एंड कार्डर स्ट्रेंथ. बजट माने कि लेट्स से आईआरएस है, तो आईआरएस आर रेवेन्यू सर्विसेज है, एंड रेवेन्यू सर्विसेज इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज वन ऑफ द बिगेस्ट बजट्स. दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट द बजट. तो मैं आर्म्ड फोर्सेज, डिफेंस एस्टेट सर्विस, डिफेंस अकाउंट सर्विस, इनकी बात करता हूं. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का बजट अच्छा है, उधर मैं जा सकता हूं. बजट क्या सिग्निफाई कर रहा है? आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी होगी, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा कि नहीं मिलेगा. इंडियन ट्रेड सर्विस की बात जब हम कर रहे थे तो देन दैट वाज इन ट्रेड सर्विस छोड़ो, आईसीएलएस जो है इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, तो दैट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स.
वो मिनिस्ट्री का ही बजट काफी छोटा है एज कंपेयर टू लेट्स से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और फाइनेंस, तो देयरफॉर ICLS will also not be that attractive a service. Second is cadre strength. Cadre strength का क्या मतलब है? जैसे एग्जांपल अभी हम ले रहे थे कि भाई ट्रेड सर्विस लेस देन 200 ऑफिसर्स ओवरऑल। IAS में 5000 IAS ऑफिसर्स हैं एट एनी गिवन मोमेंट। तो इन सच अ केस नेचुरली दे विल बी वेरी वेल स्प्रेड आउट एंड यू आर वेल कनेक्टेड कि यू कैन गेट योर फ्रेंड कि भाई अच्छा मुझे कुछ काम करवाना है, कैसे करवाया जाए, क्या किया जाए। तो दीज सोर्ट्स ऑफ क्विड प्रो को वाली चीजें थोड़ी बहुत होती हैं एंड दैट्स आल्सो यूजफुल। तो पोटेंशियल ऑफ सर्विस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकंड, प्लीज कीप इन माइंड दैट सर्विसेज चेंज। इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारा ऑफ IRMS। राइट, IRMS के आने से पहले IRMS वाज इंट्रोड्यूस्ड आई थिंक 2017-18 में, एंड बिफोर दैट you used to have 4 railways ka service. Now the government came up, they said the big reform, IRMS will unify all the services and uski wajah se there will be some streamlining of the recruiting and a number of ideas were floated. IRMS लाया गया, बट अब IRMS में लाके फिर वही प्रॉब्लम्स हो गई कि एवरीबडी वांटेड कि मेरे को ट्रैफिक में ही जाना है, किसी को पर्सनल में नहीं जाना, किसी को अकाउंट्स में नहीं जाना। तो नाउ प्रैक्टिकली अब क्या है, पहले सर्विसेज को यूनिफाई करके IRMS बनाया, अब लास्ट 2 ईयर से IRMS को वापस स्प्लिट करके वही सर्विसेज बना दी गई है। तो इन सच अ केस नेचर ऑफ सर्विस हैज चेंज्ड, एंड ये आप प्रिडिक्ट कर सकते थे? नहीं। अनदर एग्जांपल आई विल गिव यू, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर यूज्ड टू बी अ स्टेट कार्डर, जम्मू एंड कश्मीर इज नो लॉन्गर अ स्टेट। तो जब वो अब एगमुट कैडर में आ गया है, तो देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल हु वर पार्ट ऑफ द जम्मू कश्मीर कैडर, जिनका प्रमोशन उस बेसिस पे हो रहा था, नाउ सडनली दे हैव बीन कंज्यूम्ड विद इन द एगमुट कैडर। तो अब लेट अस से जब जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटहुड वापस रिस्टोर होता है, तो देन लॉट ऑफ दीस पीपल विल गो बैक, सम अदर पीपल विल बी गिवन द चॉइस। तो दीस सॉर्ट्स ऑफ चेंजेस कीप हैपनिंग। ट्रेड सर्विस आज है, कल को नहीं हो, मुझे नहीं पता। आई नो फॉर अ फैक्ट दैट देयर विल बी सम सर्विसेज व्हिच आर द ग्रुप 1 सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव, पुलिस, फॉरेन सर्विस एंड रेवेन्यू सर्विसेज। ये 4-5 जो सर्विसेज हैं, I can be damn sure that these services will remain unchanged for the next 30, 40, 50 years. ये भी चेंज होती हैं, मे बी देयर विल बी सम मॉडिफिकेशन कि अब GST आ गया तो दीज थिंग्स विल हैपन। आई कैन नॉट प्रिडिक्ट दैट, नोबडी कैन प्रिडिक्ट दैट फॉर दैट मैटर। सो इन दिस केस पोटेंशियल ऑफ सर्विस बेस्ड ऑन कि भाई मिनिस्ट्री का बजट क्या है, कार्डर की स्ट्रेंथ क्या है, एंड सेकंड कि भाई इस बेसिस पे इतना दिमाग मत लगाओ कि अरे मेरे को तो बस मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से यही सर्विस पता है, कल को तुम्हारी सर्विस ही ना हो, तुम्हें नहीं पता है। राइट, तो कीपिंग दैट इन माइंड, लेट्स गेट बैक टू द डिस्कशन ओवर हियर। टॉप प्रेफरेंस या प्रेफरेंसेस से पहले हमने क्या किया है, यहाँ पे वी हैव क्रिएटेड 4 टियर्स। राइट, 4 टियर्स हमने बनाए हैं, T1, T2, T3 एंड T4। T1 में हमारी टॉप सर्विसेज हैं which is ASPS and FS, because these are indeed the best of the best services। and बहुत से लोगों को पता नहीं क्यों दिमाग में आता है, या कोई इंस्टीट्यूट वाले गुमराह कर देते हैं ये कि नहीं फॉरेन सर्विस को ना नीचे भरो। अरे भाई पागल वागल हो क्या? दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सर्विसेज आउट देयर, एंड सो मच सो दैट भाई आपको जो क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलेगी दैट इज नॉट मैच्ड एट ऑल विद लेट्स से पोस्टल सर्विस में भी नहीं होगा, रेलवे पुलिस में भी नहीं होगा, एंड लाइक नहीं, इट इज मच बेटर देन द रेस्ट। टीयर 4 में हमारी जो है, वील हैव द ग्रुप बी सर्विसेज। राइट, ग्रुप बी सर्विसेज में आपकी कौन सी आती हैं? डानिक्स, डानिप्स, पॉन्डिप्स, पॉन्डिक्स एंड योर AFHQ सर्विस। नाउ ऑल ऑफ दीज सर्विसेज आर नेचुरली ग्रुप बी, तो डायरेक्टली ग्रुप बी में हो गई, तो दैट इज वाई टीयर 4 में है। अब बीच में टीयर 2 एंड 3, दिस इज वेयर द इंटरेस्टिंग स्टफ हैपेंस। यहां पे अ लॉट ऑफ द अकाउंटिंग सर्विसेज वी विल हैव, अकाउंट्स एंड ट्रैफिक, एंड यहां पे देन फिर दिस इज द मिक्स बैग, these are services which are there but they are not that great। इवन दो ये ग्रुप ए सर्विसेज हैं, बट अगर आपको ये मिलती हैं तो मे बी इट इज बेटर ऑफ इफ यू हैड गिवन स्टेट सिविल सर्विसेज। तो ये टीयर्स में हम इसके बारे में बात करेंगे, एंड टीयर्स में अब एक बार देख लेते हैं। नाउ टीयर 1 ऑब्वियसली हमारी है IAS, IFS एंड IPS। अब इसमें अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि देखो पुलिस में ना वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता। वर्क लाइफ बैलेंस इज अ मिथ, आई कैन टेल यू दैट राइट नाउ। IAS, IFS, IPS तीनों में से किसी सर्विस में आपको ढंग का वर्क लाइफ बैलेंस नहीं मिलेगा, प्रोवाइडेड ऑब्वियसली आप काम के बंदे हो, आप काम कर सकते हो, तो देन यू विल कॉन्स्टेंटली बी इन डिमांड एंड यू विल कॉन्स्टेंटली बी आस्क्ड टू हैंडल द बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स।
एंड देखो, चीज ये होती है कि ऑल ऑफ दीज थ्री सर्विसेज रिक्वायर मैनेजमेंट स्किल्स। बहुत से लोगों को लगता है कि मैं पुलिस में चला जाऊंगा तो नहीं नहीं, पुलिसिंग तो मतलब एकदम डंडा, अरे डंडा नहीं मारना है भाई। तुमको कौन, किसने बोला? एसपी जाके सड़क पे डंडा नहीं मार रहा होता। एसपी का जॉब इज टू मैनेज पीपल, मैनेज द पुलिस फोर्स। इंडिया हैज अ ह्यूज पुलिस फोर्स। ऑल ऑफ दीज आर मैनेजमेंट लेवल सर्विसेज, एंड दैट इज द आइडिया दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि हर जगह पे इन दीज सर्विसेज यू विल बी मैनेजिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल, एंड दैट स्किल यू हैव टू डेवलप। नाउ आईएएस ऑब्वियसली द बेस्ट ऑफ द लॉट, क्यों? क्योंकि कार्डर स्ट्रेंथ काफी अच्छा है, 5000 प्लस पीपल इन द सर्विस, and most of the top jobs in every location and every place are taken up by the IAS at the moment. Now this is also changing. इसमें क्या रहता है कि there are something called the empanelment rules, right? Empanelment rules क्या रहते हैं? Beyond a point, to be appointed as joint secretary. Now joint secretary is, joint secretary के बाद आप बनते हो additional secretary and then finally secretary. तो सेक्रेटरी से ऊपर तो ऑब्वियसली कोई है नहीं, कैबिनेट सेक्रेटरी वन पर्सन ओनली, तो मतलब दिस इज वेयर प्रैक्टिकली मोस्ट प्रोग्रेशन स्टॉप्स। उससे भी ऊपर छोड़ो, जॉइंट सेक्रेटरी इज वेयर यू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग रियल पावर एंड इन्फ्लुएंस विद इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज यहां पे आप अपना पॉलिसी को रियली फॉर्मुलेट कर रहे हो। नाउ इधर जाने के लिए देर आर दी एम्पैनलमेंट रूल्स। रिसेंटली इन द लास्ट 5-10 years व्हाट हैज हैपेंड कि पहले 90% of the joint secretaries were IAS officers. Now, in the last 10 or so years, this has changed, and now almost 50% of the people who are coming up to the joint secretary level are from other Group A services. Right now, this has happened in the change because of the change in the empanelment rules. तो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे जब ऊपर आपको पोस्टिंग्स खुल जाती हैं, तो उसके कारण क्या होता है? मूवमेंट होती है कार्डर में, मूवमेंट होती है तो देन प्रमोशन के चांसेस ज्यादा होते हैं एंड पोटेंशियल आपका सर्विस का बढ़ता है। तो आइडिया यहाँ पे क्या है? पहले दिस सर्विस यूज्ड टू बी द क्रीम ऑफ द क्रॉप। व्हाई? बिकॉज पोस्टिंग सबसे ज्यादा इनके पास है, कार्डर स्ट्रेंथ इनका काफी स्ट्रॉन्ग है, तो ऑल पीपल एवरीवेयर विल बी एसोसिएटेड विद ईच अदर एंड कुछ ना कुछ करके आप अपना भाईचारे में निकलवा लेते हो काम। फॉरेन सर्विसेज में ऑब्वियसली देयर इज वन बिग कैवियाट कि भाई 2/3 ऑफ योर करियर विल बी आउटसाइड ऑफ इंडिया, 1/3 ऑफ इट स्टिल विल बी इन इंडिया। कि भाई आप लेट्स से 30 ईयर का आपका करियर सर्विस है, 10 years of that will be spent in India. मतलब this will be in regional passport offices or in the Ministry of External Affairs, जहां पे डेस्क्स होती हैं, उन डेस्क्स को हैंडल करना होता है, मैनेज करना होता है। तो दीज आर द डिप्लोमैट्स, दीज आर द फेसेस ऑफ इंडिया, इट्स अ वेरी वेरी प्रेस्टिजियस जॉब। बहुत लोगों को लगता है कि मुझे बाहर जाके रहना पड़ेगा, बट आपको जितनी इज्जत और जितना आपको एक्सपोजर इस सर्विस में मिलेगा ना, वो कंपेरेबल टू एएस है। नेचुरली 2/3 ऑफ योर सर्विस विल बी स्पेंट आउटसाइड ऑफ इंडिया। नाउ कमिंग टू आईपीएस, बहुत सारे लोगों को लगता है दैट वही डंडा मारने वाली जॉब है कुछ हद तक, बिकॉज आप emergencies don't wait for your working hours, emergencies can happen anytime and you have to be responsive, but then that is also the case over here कि भैया अगर कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है तो मतलब आईएएस आईपीएस छोड़ो, होम मिनिस्टर जाके वहां खड़ा होगा। सो देन अगेन उसके बेसिस पे मैं ये ना सोचूं कि भाई अच्छा मेरा वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होगा। वर्क लाइफ बैलेंस, इफ यू आर अ गुड ऑफिसर, work life balance is not going to exist any which way. If you are going to be an average or below average officer, तो फिर चिल मारो ना, फिर क्यों सोच रहे हो इतना? जो बढ़िया सर्विस मिल जाए चलेगा। नाउ आईपीएस में ऑब्वियसली एक वो वर्दी का रुतबा रहता है, दैट पीपल आर वेरी वेरी अटैच टू द आइडिया ऑफ कि ओके आई विल गेट अ यूनिफॉर्म। एंड ये रोहित शेट्टी की मूवीज देख के लोगों को लगता है कि भाई दबंग ऑफिसर बन जाएंगे। दबंग दबंग कुछ नहीं होता है, ढंग से तमीज से काम करना होता है। देयर आर अ लॉट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स दैट यू हैव टू फॉलो। एंड यहाँ पे भी इफ यू आर अ मैनेजर, इफ यू आर अ गुड पीपल पर्सन, you will excel very well in this service. Now for example, I'll give you there was a student of ours secured I think 110 something, 110s में रैंक थी उनकी, फीमेल। एंड उनको लगा कि भी नहीं नहीं, पुलिसिंग विल बी अ वेरी हार्ड एंड टफ जॉब, तो मैं आईआरएस भर देती हूँ ऊपर। शी गॉट आईआरएस आईटी एट मे बी 110-15 समथिंग रैंक। एंड उसमें अब हुआ क्या कि एकेडमी में जाके अब उनको लोगों ने बोलना, सवाल पूछना शुरू कर दिया कि भाई ये क्या कर दिया, ये क्या गलती कर दी तुमने। हमने बहुत बोला था उनको पहले कि भाई मत करो, पुलिस इज अ ग्रेट सर्विस,
there are a lot of women police officers who are very well respected within the force and like there is great career progression over here. मतलब यहाँ पे इन तीनों सर्विसेज में जो आपको री एजुकेशन का पॉसिबिलिटी मिलता है विद द गवर्नमेंट इज फंडिंग कि आप जाओ फॉरेन इंस्टीट्यूट्स में यूनिवर्सिटीज में आप पढ़ाई करो, गवर्नमेंट पैसा देगी इनका, तो इतना और सर्विसेज में नहीं मिलता। तो देयरफॉर आईपीएस आल्सो ग्रेट पोटेंशियल, बट फिर बहुत से लोगों को वही लगता है कि नहीं 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 मेरे टेम्परामेंट के साथ मैच नहीं करता। ऐसा कोई भी टेम्परामेंट या पर्सनालिटी स्किल नहीं है जो कि आपको लगता है आईपीएस में चाहिए होगा जो और कहीं नहीं चाहिए। वट एवर इट इज दैट यूर थिंकिंग, ट्राई एंड थिंक इन दिस वे कि अच्छा आईपीएस में आपको क्या लगता है क्या चाहिए और आप में क्या नहीं है। जो चीज मेरे में नहीं है ना, दैट विल बी अ प्रॉब्लम इन ईच एंड एवरी वन ऑफ दीज सर्विसेज। सो देयरफॉर टॉप 3 में टियर 1 सर्विसेज आपकी यही है। एएस, पीएस, एफएस आगे पीछे आपको जैसे करना है वो आपका पर्सनल चॉइस है। जनरली पीपल फिल एएस और एफएस इन द फर्स्ट प्रेफरेंस, दिस बिकम्स योर सेकंड और थर्ड, राइट। तो एक मॉडल प्रेफरेंस हम देख लेते हैं कि भाई अच्छा मेरे को अगर फॉरेन में नहीं जाना तो देन 1, 2 एंड 3 इस तरीके से ये हो जाता है। नाउ कमिंग टू आवर टियर 2 सर्विसेज, टियर 2 आर आल्सो ग्रेट सर्विसेज। व्हाई? Because you have a lot of authority, you have a lot of power and you have a lot of uh, domain to expand into। जो potential of the service की हमने बात करी थी, तो जैसे इंडिया इज ग्रोइंग फास्टर तो टैक्स कलेक्शन इज ग्रोइंग फास्टर, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो उस केसेस में द आईआरएस, audits and account service, and then the IRTS, these are your tier 2 services। तो 1 2 3 हमारा हो गया। अब इसको आपको 4 करना है, इसको 5 करना है, that is a personal choice that I will leave up to you। Recently what has happened is because of the faceless system, faceless system में क्या हो रहा है, पहले क्या होता था that you were working with the people in your local area, बट उसमें अब 2 नंबर का काम बहुत होता था। तो नेचुरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्हाट दे डिड इज दे क्रिएटेड अ रैंडमाइजर कि भाई आपको किसका केस असाइन हो रहा है आपको नहीं पता है। वेयर इज दिस कंपनी सिटिंग, मे बी लेट्स से यू आर पोस्टेड इन नागपुर बट यू आर लुकिंग एट अ केस फ्रॉम गुवाहाटी। तो अब ऐसे में ना वो 2 नंबर वाली चीज कम हो गई है। तो देयरफॉर अ लॉट ऑफ पीपल यू विल हियर देम सेइंग कि चार्म खत्म हो गया है सर्विस में। व्हेनेवर दे आर सेइंग चार्म खत्म हो गया है तो दैट इज अ कोड वर्ड, राइट। IRS, customs and income tax, now this is something with now GST भी इसी सर्विस के अंडर आता है। This is a service which is now growing a lot in prominence, but इसमें भी because GST is constantly changing and evolving, तो भाई a lot of changes and evolution have to happen। तो किसी भी इस सर्विस में ना आप देखोगे कि whenever there is something new happening, rapid happening, तो सबसे पहली चीज तो आपको ये समझनी है, a lot of people feel कि I don't need to skill up once I am in service, कि भाई सर्विस में एक बार मुझे मिल गया तो बस लाइफ सेट है, नहीं है। गवर्नमेंट में घुस के जितना आपको स्किल अप करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट योरसेल्फ, इन ऑर्डर टू क्रिएट एन एक्सपर्टीज, उतना शायद और कहीं ना करना पड़े फॉर प्रमोशंस एंड फॉर गेटिंग अहेड। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि अब लेट्स से आईआरएस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ट्राइंग टू यूज अ लॉट ऑफ एआई टू कैच अ लॉट ऑफ टैक्स फ्रॉड। तो भाई ये ऑफिसर कोई तो करना पड़ेगा, कौन करेगा? द IRS ऑफिसर इज द वन हु विल हैव टू स्किल अप एंड लेवल अप एंड देन गेट इट इम्प्लीमेंटेड, सो दैट कोई अगर दिक्कत आती है तो देन दीज आर द पीपल हु विल बी टेकिंग अप। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड दैट ऑल ऑफ दीज सर्विसेज में जो टियर 1 एंड टियर 2 सर्विसेज है पर्टिकुलरली, इनमें यू विल हैव टू कीप अब्रेस्ट ऑफ वॉट एवर इज हैपनिंग लेटेस्ट, क्योंकि आपको ही वो जाके अब सरकार में इंप्लीमेंट करना है, राइट। नाउ Audits and account service is a great service. This I would say definitely keep at number 6. Number 6 पे यहाँ पे क्यों? Audits and account service में क्या है कि all the bureaucrats also, which is IAS, IPS officers also, eventually आप audit कर रहे हो उन पे। Cadre strength इसका इतना नहीं है, but then yeah, they are mostly posted in state capitals, right? तो state capital वाली चीज की अगर इसकी भी बात करें तो IRS IT में you will mostly be posted in state capitals, क्योंकि मतलब टैक्स का सारा काम जनरली वहीं से होता है। There are other centers also, but you'll be posted in tier 1 2 3 tier 1 and 2 cities mostly, 3 में भी कभी कभार, but mostly you will be in big cities जहाँ पे it's easier for you to maintain a family life। आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो आपको स्कूल नहीं बदलना पड़ रहा है बार बार, those sorts of things। कस्टम्स में नेचुरली यू कैन बी पोस्टेड एट एयरपोर्ट्स। तो एयरपोर्ट वाले जो लोग होते हैं कि भाई ड्यूटी फ्री से कुछ सामान मंगवाना है करना है तो वो सब यहाँ होता है। And other than that, they are also posted at ports. They are also posted at custom checkpoints. So then again, variety of postings is a lot more in customs and income tax. So therefore, मेरी तरफ से मेरी अगर मानो तो I would say customs and income tax, which is the GST वाला aspect, you can keep this at 4, this at 5.
बट अगेन इट्स अ पर्सनल प्रेफरेंस कि भाई आपको थोड़ा स्टेबिलिटी चाहिए या आपको ग्रोथ चाहिए लाइफ में. फॉर द नेक्स्ट 30 to 40 years एज इंडिया इज ग्रोइंग एंड इवॉल्विंग, आई वुड से चूज ग्रोथ. क्योंकि ग्रोथ अगर आपको समझ आ रही है ना, इफ यू आर एजाइल एंड निम्बल ऑन योर फीट, you will find a lot of success in life. Now, audits and accounts definitely at 6. कुछ लोग इसमें दिमाग लगाते हैं और इसको नंबर 4 पे भर देते हैं. इतना मत करो. ऑडिट एंड अकाउंट ही है अंत में. आपके पास पावर है, राइट? यू कैन क्वेश्चन आईएएस एंड आईपीएस ऑल्सो, फॉरेन सर्विसेज ऑल्सो. क्योंकि ऑडिट इवेंचुअली सबका होता है कि भाई कहाँ पैसा खर्च किया, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं हुआ. So therefore, a lot of charm in this service. The service life is also good. बहुत ज़्यादा hectic यहाँ पे काम नहीं होता है. Good balance. So this therefore is a service that a lot of people choose on that basis. Now, tier 2 में last service हमारी है IRTS, which is the Railway Traffic Force service. Now, this nowadays will be the IRMS traffic. Now, think of it as कि भाई railways is a whole domain. राइट? रेलवेज में देयर इज अ ह्यूज नंबर ऑफ थिंग्स दैट नीड टू बी डन. रेलवेज में आपका कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, रेलवेज में आपका रिपेयर एंड ओवरऑल मेंटेनेंस भी चल रहा है, रेलवेज में आपका मैसिव प्रोक्योरमेंट भी चल रहा है. बहुत सारी चीजें रेलवेज में चल रही है. एंड रेलवेज के अंदर जो आईएएस ऑफिसर के लेवल का इंसान है, दैट इज दिस IRMS ट्रैफिक. सो देयरफॉर प्लीज कीप दिस सर्विस एट अ वेरी वेरी हाई नंबर 7, क्योंकि दिस सर्विस हैज अ वेरी वेरी गुड पोटेंशियल विद इन योर रेलवेज. नाउ, ऊपर वाली जो अब तक सर्विस थी, टिल 5-6 तक हमारी जो सर्विस थी, इनमें देर इज नॉट दैट मच ऑफ अ चांस ऑफ चेंज, राइट? पोटेंशियली मुझे एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहिए, मुझे फॉरेन भी चाहिए, मुझे पुलिसिंग भी चाहिए, रेवेन्यू भी, मतलब दीज आर ऑल क्रिटिकल फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट. सिंस खर्चा हो रहा है तो ऑडिट भी चाहिए. नाउ सर्विस रूल्स पे देयर माइट बी सम चेंजेस कि भी अच्छा इनको एम्पैनल करेंगे, नहीं करेंगे, क्या करेंगे. बट फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स आईआरटीएस जो हमारी है, ये बहुत ही बढ़िया चीज है. बट दिस इज नाउ एक्सपोज टू अ प्रॉब्लम. प्रॉब्लम क्या? सर्विस चेंज वाली जो प्रॉब्लम के बारे में हमने बात करी थी. लेट अस से द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेज दैट वी वांट टू प्राइवेटाइज रेलवेज. क्या कर लोगे? तुमने तो मेहनत करके गए थे यहाँ पे, मतलब ऑब्वियसली यू विल स्टिल बी देयर एंड इट्स अ रियली गुड सर्विस. बट इट इज एक्सपोज टू दीज सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम्स कि भाई गवर्नमेंट इज नाउ ट्राइंग टू पुश फॉर कि प्राइवेटाइज करो रेलवेज. तो देन इज इट जस्ट कि भाई एवरीबडी विल बी अ प्राइवेट प्लेयर और government will have some control and there will also be private players? There is no clarity on this because government itself is not fully decided on क्या करना है. तो therefore थोड़ा वो यहाँ पे ओपन एंडेड चीजें आ जाती है. देन टीयर 3 में हमारी जो आती है सिविल अकाउंट, डिफेंस एस्टेट्स, पोस्टल सर्विस, पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन अकाउंट, रेलवे अकाउंट, रेलवे पर्सनल सर्विस. These are your tier 3 services. Then the railway protection force. Now these 3 services जो हैं, these should be your last preference within the zone 3. राइट? अब इन पर्टिकुलर सर्विसेज से ज्यादा मैं आपको बोलूंगा, विल टॉक अबाउट देम इन अ मोमेंट, बट इन सर्विसेज से ज्यादा मैं बोलूंगा कि इफ यू आर फ्रॉम द नॉर्थ, इवन दो दीज आर ग्रुप ए सर्विसेज, आप डानिक्स एंड डानिप्स को डेफिनेटली इनके ऊपर डाल सकते हो. डेफिनेटली. क्यों? क्योंकि डानिक्स एंड डानिप्स आर ग्रेट सर्विसेज एंड ग्रेट सर्विसेज टू द एक्सटेंट ऑफ यू गेट अ पब्लिक फेसिंग जॉब. आपको अपना जो कि भाई अटेम्प्ट लिमिटेशन है उससे भी थोड़ा बच जाते हो. एंड एट द सेम टाइम दीज ऑफर अ वेरी गुड सॉर्ट ऑफ सर्विस एंड लाइफ बैलेंस. क्योंकि मोस्टली आप दिल्ली में पोस्टेड हो गए यहाँ पे, देर विल बी सम कंपल्सरी पोस्टिंग्स कि एक बार आप अंडमान एंड निकोबार में जाओगे एंड लाइक लक्षद्वीप में जाओगे. Every 2 to 3 years, 5 years, there will be one posting that you'll have to go and serve over there. But most of the time you'll be spending in Delhi. Why? Because Delhi is the massive population center and वहां पे आपको ये services होंगी. इसमें भी I would say DANIPS can be put above DANICS. Why? Because Delhi, अंडमान निकोबार, ये जो यूटीज हैं, यहाँ पे ना कमिश्नरेट सिस्टम होता है. एंड जब कमिश्नरेट सिस्टम होता है तो देन द पुलिसिंग इज अ लॉट मोर इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल. एंड दैट केस में that is the idea over here कि DANICS and DANIPS both eventually can get promoted to IAS and IPS. but जो DANIPS वाले लोग हैं आपके, they will have a lot more sort of freedom to move around. DANICS में भी है, ऐसा नहीं है, but वही कमिश्नरेट सिस्टम इन पुलिस
gives a lot more flexibility for DANIPS, राइट? तो अब अगर नंबर्स की बात करें ऊपर, तो 7 तक हम पहुंच गए थे। 7 के बाद यू कैन हैव ओवर हियर 8, 9, हमारी कहाँ है 10। अकाउंट्स वाली जो सारी है हमारी, उनको हमने ये कर दिया, सिविल अकाउंट, डिफेंस अकाउंट, रेलवे अकाउंट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ अकाउंट, इसको भी आप कर सकते हो 11 पे। नाउ इसके बाद हमारी आ जाती है डिफेंस एस्टेट्स, पोस्टल सर्विस एंड रेलवे पर्सनल सर्विस। तो दिस कैन बी नंबर 12। डिफेंस एस्टेट्स मतलब ये 12, 13 इन दोनों में से आप चूज कर सकते हो। बोथ ऑफ देम आर गुड सर्विसेज। डिफरेंस बीइंग कि भाई डिफेंस एस्टेट्स एंड पर्सनल सर्विसेज में रोल विल बी वेरी वेरी डिफरेंट। डिफेंस एस्टेट्स में व्हाट यू डूइंग इज कि कैंटोनमेंट एरियाज में जो लैंड होल्डिंग्स है, लाइक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज वन ऑफ द बिगेस्ट लैंड होल्डर्स इन इंडिया, तो वो जो डिफेंस के एस्टेट्स हैं उनको मैनेज करने के लिए ये सर्विस है। एंड इट्स अ गुड सर्विस, इट्स अ चिल लाइफ। आप कंटोनमेंट में रहोगे मोस्ट ऑफ योर टाइम, तो यू विल हैव लाइक ग्रेट सर्विसेज, मतलब अम्यूनिटीज आपको सारी बढ़िया मिलेंगी, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इज प्रीटी गुड ओवर हियर। रेलवे पर्सनल सर्विस, दिस इज बेसिकली रेलवेज का एचआर डिपार्टमेंट। तो जैसे एचआर डिपार्टमेंट की हर जगह इज्जत होती है, तो देयरफॉर रेलवेज में भी एचआर डिपार्टमेंट की इज्जत होती है। आईएएस बीइंग आईएएस, बट पर्सनल सर्विसेज आल्सो अ गुड सर्विस दैट यू कैन हैव ओवर हियर। अकाउंटिंग सर्विसेज को हमने इधर ऊपर रखा है फॉर द वेरी सिंपल रीजन दैट योर अकाउंटिंग सर्विसेज आर जहां से मनी फ्लो कर रहा है, सो देयरफॉर दे हैव अ लॉट मोर विजिबिलिटी एंड थोड़ा समझने में चीजें आसान रहती हैं आपकी। अकाउंटिंग हमने इसलिए भी ऊपर रखा है कि दीज सर्विसेज देन अलाउ यू अ बेटर पोस्ट रिटायरमेंट करियर पाथ, कि भाई अकाउंटिंग आपने ढंग से तरीके से अगर करी है, तो पोस्ट रिटायरमेंट दीज सर्विसेज विल गिव यू सम मोर ऑप्शंस। देन 13 एंड देन पोस्टल सर्विस पे 14। नाउ पोस्टल सर्विस जो हमारी है, देन 15 व्हिच इज द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। पोस्टल सर्विस जो हमारी है, दिस इज वन ऑफ द सर्विसेज जहां से इतने सारे लोग बहुत जगह चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि थिंक ऑफ पोस्टल सर्विस एज यू गॉट पोस्टल सर्विस एट मे बी 300 400 रैंक, ठीक है? आपके में भी 20 नंबर ज्यादा आते, आप आईआरएस में होते। अब 20 नंबर ओवर 7 पेपर्स, राइट? 20 marks on 7 papers is not a lot, which is almost 3 marks per paper. अब आप मेरे को बताओ कि दिन मेरा अच्छा होता है, तो हाँ, मतलब आई वुड हैव स्कोर्ड मे बी 3 to 5 marks more on a same paper. तो पोस्टल सर्विस में देयर इज अ लॉट ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ रिलेटिव डेप्रिवेशन वाली फील। रिलेटिव डेप्रिवेशन क्या है? मतलब कि भाई आपको दिख रहा है कि जो आपके ऊपर बैठे हैं अब लोग, या पीपल हु आर इन आईआरएस, आईपीएस, आईएएस, ये जो लोग हैं कितने 20 नंबर 30 नंबर ही ज्यादा थे आपसे, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ इज सो मैसिवली डिफरेंट फॉर देम। क्योंकि पोस्ट, अब बोलने को ठीक है पोस्टल डिपार्टमेंट है, हाँ ठीक है, आप ग्रुप ए सर्विस में हो, तनख्वाह आपकी सेम है, सब कुछ है, बट लाइक नॉट एट ऑल द सेम पावर, नॉट एट ऑल द सेम सॉर्ट ऑफ एग्जीक्यूशन कैपेसिटी। अब कुछ लोगों का दिमाग यहाँ पे चलता है, देयर लाइक कि भाई ठीक है, पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन वाला जो डिपार्टमेंट है भाई, यहाँ पे देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर ग्रोथ एंड हाँ ठीक है, बट इससे ज्यादा इट वुड बी मच बेटर इफ यू गो एंड वर्क फॉर जियो एंड एयरटेल एंड वहां पे आप ग्रो कर जाओ, क्योंकि दिस इज स्टिल वेरी लिमिटेड। नाउ postal service में there are a lot of people who what they do if they are ambitious. Now why am I saying this? Because I have a friend of mine, मेरा बैचमेट था आईआईटी से, and he is in the postal service right now, and obviously उसको लगता था कि भाई मतलब he had the potential to be an IAS IPS officer, but अभी प्रीलिम्स नहीं निकलता था वो भाई से। प्रीलिम्स नहीं निकलता था तो क्या हुआ कि भाई 6 अटेम्प्ट में एक बार प्रीलिम्स हुआ, एक बार में उसकी रैंक आ गई, रैंक पे उसको मिला पोस्टल सर्विस, दोबारा प्रीलिम्स ही नहीं निकला, एंड वो शुरू के किसी अटेम्प्ट में हो गया था, उसके बाद प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा है। So in such a case, what has happened is कि now he is in the postal service. He has decided he'll stay there, and he is trying a number of other things कि भाई आईबी में काम कैसे किया जाए, रॉ में कैसे काम किया जाए, या किसी और मतलब फॉरेन पोस्टिंग आपकी कहाँ से ले ली जाए, कोई स्टडी का एवेन्यू मिल जाए। तो all of these sorts of things are also available, and a lot of the people in the postal service go and try and do a lot of these things, क्योंकि इधर इस सर्विस के अंदर बहुत ज्यादा काम नहीं है, राइट? Which brings us to these services. तो अब 15 तक हम आ गए हैं। तो आई वुड से इफ यूर फ्रॉम द नॉर्थ, ग्रुप 1, ग्रुप ए, ग्रुप बी मत देखो,
इनको ऊपर डालो एंड उसके बाद इन सर्विसेज को आप डाल सकते हो। वाई? बिकॉज इन तीनों सर्विसेज में मतलब एक तो कार्डर स्ट्रेंथ आपका इतना छोटा है कि कॉर्पोरेट लॉ सर्विस इज अटैच्ड विद द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का ही मतलब बजट इज मे बी 3,000 5,000 crores, राइट? बहुत छोटा बजट है, बहुत छोटा कार्डर है, एंड दीज थ्री सर्विसेज हैव वन ऑफ द हाईएस्ट अट्रिशन रेट्स। माने कि लोग ज्वाइन करते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। तो नॉट दैट ग्रेट सर्विस। मतलब आई इंफॉर्मेशन सर्विस की अगर हम बात करें तो दिस इज अ सर्विस व्हिच इज a lot of people, मतलब initially when the government was the sole communication mouthpiece, right? 60s 70s 80s में अगर हम बात करो तो then like government से ही information आ रही है। very important services back then. Now with social media, with television, with a lot of these things, ये बहुत ही एक सेरेमोनियल सा रोल रह गया है। मतलब इफेक्टिवली व्हाट यू विल बी डूइंग इज कि यू नो, you'll be मैनेजिंग सोशल मीडिया अकाउंट्स, या भाई you'll be मैनेजिंग कि भाई इवेंट्स हो रहे हैं गवर्नमेंट के तो उनको ऑर्गेनाइज करवाना है, एंड उसमें भी अगर कोई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है तो वो भी इनसे हटा के किसी और को ही दे दिया जाएगा। तो दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग हैज हैपेंड, तो देयरफॉर अ लॉट ऑफ अट्रिशन। ट्रेड सर्विस में these are the people who were part of the negotiation for WTO and all of these कि भाई इंटरनेशनल ट्रेड जो ट्रीटीज बनती हैं, but even then they are not the lead negotiators, right? They are the people who are given the background tasks. लीड नेगोशिएटर कौन होगा? आपका आईएएस आईएफएस ऑफिसर कोई होगा, या स्पेशल सेक्रेटरी कोई होगा कि भाई मतलब somebody with more extra information। तो then background roles काफी ये रह गए हैं, therefore we want to keep them slightly lower. Now AFHQ सर्विस जो है, दिस इज अ सर्विस विच इज सिलेक्टिंग सेक्शन ऑफिसर्स। तो कायदे से ये इधर होना भी नहीं चाहिए सिविल सर्विसेज के एग्जाम के इसमें। कायदे से ये आपका एसएससी के पेपर में ये सर्विस का जाना चाहिए, बट अब है इधर और चलता आ रहा है तो चीजें चल रही हैं, तो देयरफॉर मतलब वेरी लो प्रायोरिटी, वी वांट टू कीप इट मे बी लेट्स से 23 लास्ट, इवन फर्दर डाउन। इफ यू आर फ्रॉम पौंडीचेरी तो देन पॉन्डिक्स एंड पॉन्डिप्स आर ऑल्सो ग्रेट सर्विसेज। ग्रुप बी है, ऑल ऑफ दीज जो टीयर 4 वाली हमारी हैं, दीज आर ग्रुप बी सर्विसेज, एंड दैट्स द आइडिया कि इवन दो ग्रुप बी सर्विसेज हैं, डानिप्स इज वेरी गुड, मच हायर देन सम ग्रुप ए सर्विसेज, एंड देन डानिक्स इज ऑल्सो गुड। यहाँ पे दोनों में आपको आईएएस आईपीएस का प्रमोशन का चांस मिलता है। सेम थिंग ओवर हियर, पॉन्डिक्स एंड पॉन्डिप्स। अब यहाँ पे प्रॉब्लम में क्या आती है कि भाई पौंडीचेरी इज इट्स अ वेरी sort of unique situation. What is the unique situation? कि पौंडीचेरी में there is a lieutenant governor, there is a chief minister, there are MLAs, उसके बाद आप यहाँ ये सर्विस में हो गए और इसके ऊपर भी आईएएस आईपीएस भी हैं, तो there is a lot of administrative machinery. तो even though you get into these services, मतलब there is a lot of hierarchy above you any which way from day one. सब कहीं है बट इधर थोड़ी ज्यादा ही है। नाउ इसमें इफ यू आर फ्रॉम दिस एरिया अराउंड पौंडीचेरी, आप रहते हो कहीं पे, पौंडीचेरी में ही रहते हो आप कहीं पे, तो देन लाइक ग्रेट सर्विस बिकॉज यू विल बी पोस्टेड प्राइमरीली इन पौंडीचेरी इटसेल्फ, एंड देन इवेंचुअली इसमें भी प्रमोशन का चांस है टू आईएएस एंड आईपीएस, डेफिनेटली लेस देन दिस। क्यों? क्योंकि इसका भी कार्डर स्ट्रेंथ इज मच लोअर देन दिस, राइट? So this is the gist of what I wanted to talk about. Now a couple of things again I will highlight, which is something that we talked about at the very first also, but I want to highlight just because these are important. कि भाई सर्विसेज कैन चेंज। जो भी आज सर्विस है कि भाई कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, लेट्स से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड्स कि 10 साल में यार मतलब कुछ हो नहीं रहा है, हटा दो, या ट्रेड सर्विस को लाइक हटा दो, लेट दी आईएएस आईएफएस ऑफिसर्स डू दैट जॉब ओनली। तो इन सच केसेस आईसीएलएस, इंफॉर्मेशन सर्विस, ट्रेड सर्विस, दीज आर सर्विसेज जिनका रोल मतलब बहुत क्लियरली डिफाइंड है नहीं, जिनका कार्डर स्ट्रेंथ पहले ही बहुत छोटा है, तो देन सर्विस वो चेंज हो सकती है। आईआरएमएस का जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था, तो दैट इज अगेन एन एरिया जहां पे मतलब पहले सर्विस को कंबाइन किया गया, देन सर्विस को स्प्लिट किया गया, अब मतलब दोबारा से वो हो रहा है, बीच में कुछ घचपच हो गई है। सर्विस रूल्स के बारे में हमने देखा था कि भी एम्पैनलमेंट रूल्स जैसे चेंज हो जाते हैं, तो पहले सिर्फ आईएएस ऑफिसर्स जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबव होते थे, नाउ आईपीएस भी वहां जा रहे हैं, आईआरएस भी वहां जा रहे हैं, तो देन अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स आर चेंजिंग। What I want to do is I want to select a service on the basis of potential. पोटेंशियल के लिए मैंने आपको दो की क्राइटेरिया दिए हैं, विच इज कि भाई बजट कैसा है उधर, एंड एट द सेम टाइम कार्डर स्ट्रेंथ कैसी है, क्योंकि कार्डर स्ट्रेंथ अगर आपके सर्विस में अच्छी है
तो यू विल हैव सम और दी अदर पीपल दैट यू नो पोस्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, एंड देयरफॉर वो जो अपना होता है ना कि भाई ठीक है काम करवाना है, ये है वो है, थोड़ा छोटी मोटी चीज जो होती चलती है वो आप करवा सकते हो मच मोर इजीली. नाउ अनदर केस इन पॉइंट ओवर हियर कि भाई जे एंड के कार्डर, तो 2019 में जब स्टेट वाज मेड इनटू अ यूनियन टेरिटरी, जे एंड के कार्डर बिकेम पार्ट ऑफ एगमोट, एंड देयरफॉर थिंग्स चेंज. अब जे एंड के व्हेन इट बिकम्स अ स्टेट अगेन, तो देन फिर वो वापस स्प्लिट हो जाएगा. तो दीज sorts ऑफ थिंग्स आर डायनामिक इन नेचर, आई कैन नॉट प्रिडिक्ट देम. माय जॉब इन द एंड इज टू बेसिकली फोकस ऑन कि भाई मैक्सिमम पोटेंशियल कहाँ है, एंड मैक्सिमम पोटेंशियल पे मैं फोकस करने के लिए आई हैव गिवन यू दीज नंबर्स एनी विच वे. वी विल डू अ रीइटरेशन ऑफ देम. नंबर वन, अब 1 एंड 2 पे आपको कोई स्विच करना है, स्प्लिट करना है, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू. आई हैव गिवन दिस क्योंकि कुछ लोगों का प्रेफरेंस होता है कि भाई नहीं मुझे इंडिया के बाहर नहीं जाना, बट डेफिनेटली डोंट पुश आईएफएस डाउन फर्दर, क्योंकि आईएफएस इज अ ग्रेट सर्विस ऑल्सो. एंड यहाँ पे प्लीज कीप इन माइंड कि भाई आपकी जिंदगी कैसे बदलने वाली है आपको ही नहीं पता, राइट? यू विल गेट मैरिड, यू विल हैव किड्स, and like you know India is evolving. India is right now the third fourth biggest economy in the world. It is growing to grow even bigger. So then in such a case, the foreign services are going to become one of the most prestigious services out there. Then 4 and 5 pay, I've given my thoughts and opinions on. Personally, I would have preferred customs and GST. Why? Maybe that's personal preference because that is the service that I would have gotten at my rank back then. But abhi ke liye, jo bhi, audits and accounts, still above. Railway traffic service, great service. IRMS traffic अब इसका नाम है, ठीक है? तो IRAS जो है, this is IRMS accounts. This is railway personnel, IRMS personnel. ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे हैं. एंड इनसे पहले हमने जो सिविल अकाउंट, डिफेंस अकाउंट, पोस्टल अकाउंट एंड रेलवे अकाउंट, ये सारी हमने भरी हैं. क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग का जॉब होता है. ऑल्दो इफ यू हैव दैट इंक्लिनेशन फॉर नंबर्स, इट विल बी अ ग्रेट थिंग ओवर हियर. इंक्लिनेशन फॉर नंबर्स इतना नहीं है और अटेम्प्ट दोबारा देने का मतलब मूड है, तो मे बी यू कैन प्ले अराउंड ओवर हियर विद द डायरेक्ट्स एंड डायनेम्स आइडिया दैट आई गिव यू. बट प्लीज कीप इन माइंड कि भाई ऐसा भी होता है दैट पीपल गिव एन अटेम्प्ट एंड देन एक बारी सिलेक्शन हो गया, द स्टोरी ऑफ माय फ्रेंड दैट आई टोल्ड यू अबाउट, एंड भाई वो दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में रैंक आ गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद प्रीलिम्स ही नहीं निकला. तो प्लीज डू कीप दीज थिंग्स इन माइंड while you're filling these service preferences. I've given you a basic list, right? 21, 22 AFHQ और नीचे होना चाहिए यहाँ पे, एंड टीयर्स हमने इस तरीके से इसमें बना दिए हैं. Right, so that will be all for this video. If you have any doubts, questions, queries, please let me know in the comments, or you can even reach out to us on contact@upscprep.com. All the best.